গাঁড় গেনেছি মারাচ্ছ কি রে? ও কি হলো? আবার ওই দেখ শালা গাম্বাট পাশের ঘরে কি করছে? হ্যাঁ ওই দেখ শালা গাম্বাট পাশের ঘরে কি বাজাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছিস? বিশাল ব্যাপার রে, এ তো তার ব্যাপার। এ তো ধূসর অতীত টাইম মেশিনে করে সারা ডেল্টা স্ট্রেনের সাথে সাথে খুব চায় হলিডে প্যাকেজ সারতে চলে এসছে মনে হচ্ছে। ভালো ভালো, গুড। মানটার আবার শরীর ফরীর খারাপ হলো না তো? দেখে চিন্তা লাগছে আমার বেশ। শালা সেই 76-এর মর্মন্তরে বাজিয়েছিল বোধ হয়, আর এই এখন শুনলাম। বিরাট ব্যাপার। কিরে সূর্যকাল কোন দিকে উঠবে বলে মনে হচ্ছে তোর? বল ভাই, क्या हाल है? হাতটা পুরো চারে চলে গেছে তো। सही बोला तो, सही बोला। তো মা দুমদাম হাত তোলায় বদ সবটা কোনো গেল না না? এ তুই মা আমাকে বোঝাস তো, ধরে মা পোঙা মেরে পুরো আমার হাতে হ্যারিকেন ধরিয়ে দেবে। সারা কাজ কম মনেই মা যে হাত ফাত তুলে দিবি। তা হাতটা তোর কি মনে হচ্ছে ঠিক আছে? साला पिछले कई सालों से पैर हाथ दुखने वाला डिग्री कमाने के चक्कर में अपना वोकल कॉर्ड में लवड़ा लगा के बैठा हुआ है, तू मेरे को जज करेगा? দেখেছিস তো এই জন্য। ছাড় ছাড় বাদ দে, ঠিক আছে ঠিক আছে, হ্যাঁ বুঝেছি। আচ্ছা ছাড় ছাড় গাম্বাট বাদ দে সব, তবে তুই প্র্যাকটিসটা কর, কাজে দেবে। আর পিএইচডি তো বেশ ভালোই মস্করা করলি পিএইচডি নিয়ে। ভালো ভালো। पैरेर पी हाथेर एच और दुखनार दी। हाँ वाह, वेरी गुड। भालो, वेरी गुड। हाँ रामी साला, তুই ভাই মাথার গামছাটা বেলডাঙ্গাতেই কিনেছিলি? क्यों बे, तू तब कहाँ मंडरा रहा था? साला खुद की चीज़ें खुद को मालूम नहीं है बैंड के लौड़े। हाँ क्या मजाल है। वैसे तू पूछ क्यों रहा था? ना था हमार खिस्ती खाओ इच्छा नहीं, बात नहीं, कुछ नहीं होगा, होएगा। तू काहे करे यार, ना था আমার আবার বেকার কেলানি খাওয়ার খিস্তি খাওয়ার আমার কোনো ইচ্ছে নেই, তুই তোর শোনার দরকার নেই। खुद के साथ काहे का इमोशनल अत्याचार बे, बोल बाबा बोल 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 तो बोल बोल না। তুই এত আর কি ওই লম্বা লম্বা সব ভাবনা চিন্তা করছিস তো, তাই ভাবলাম আর কি। সেরা সেরা সেরা। তুই চেপে যা গাম্বাট, এটা তোর পক্ষে বোঝা কিন্তু চট করে বেশ চাপের ব্যাপার ভাই। আচ্ছা ঠিক আছে চল, ঠিক আছে তোর প্র্যাকটিস হয়নি মেনে নিলাম, এটা হ্যাজ সাম রিজন, লজিকও আছে। কিন্তু তুই বল, তুই তো তবলা বাজাচ্ছিস, তা তোর তো তবলা বাজাতে ভালোবাসিস, তা তুই বল তো আমাকে তবলার ইতিহাস বল, বল তবলার জন্ম কীভাবে হয়েছে, জানিস কি? জানিস তোরা দুজনে জানিস কি? তুই জানিস? তুই জানিস? अरे यार थोड़ा बहुत याद था पर अभी शायद, चल छोड़ तू ही बता दे भाई। मिथ्या एक्सपेक्टेशन राखिस ना भाई, ক্যাচ কর তুই বল শুনি আমরা। অ্যাজ এক্সপেক্টেড জানতাম আমি। শোন তাহলে 1738-এ
মানে ধরে নে 1800 খ্রিস্টাব্দের 18th সেঞ্চুরির ফার্স্ট হাফের কথা বলছি, এটা 18th সেঞ্চুরির আমির খুসরু নামে একজন ড্রামার ছিলেন। ওনাকে বলা হয়েছিল যে খেয়ালের সাথে বাদ্যযন্ত্র একটা মেলোডিয়াস কিছু বানাও যেটা সঙ্গতে কাজে লাগবে। সো দেন এই তবলার জন্মটা হয়, মানে এটা হচ্ছে অফিসিয়াল। এই সালা হেবি তো, বাহ ভাই এ তো মজা আ গেয়া। আর দাঁড়া ওয়েট, এখানে অনেক কিছু কন্ট্রাডিক্টরি ইস্যু আছে বস, ওরকম দুম করে বিশাল ভালো লাগছে বললে হবে না। ইট হ্যাজ মেনি রিজন, মানে ইট হ্যাজ মেনি हिडन फैक्ट्स ऑल्सो। अरे माइला, तो फिर इंसानों का गांड में सच्चाई घुसा के रखने का आदत तो कभी जाएगा नहीं। तू आगे बोल भाई, तू आगे बोल। কি কেসরে বাড়া? বহু পৌরাণিক মতে, অনেক বিদ্বান পণ্ডিতদের মতে, ইভেন আমাদের গুরুজি কথাটা বলেছিল আজ থেকে 25 বছর আগে। আমি জানি না তোদের মনে আছে কিনা, গাম্বাটের তো মনে থাকার কথা। তো যে কোনো এক দেশে কোনো এক রাজসভায় মৃদঙ্গমের সাথে পাখওয়াজের যুদ্ধ হয়েছিল, যেটাকে সওয়াল জবাব বলে, বুঝেছিস? সেই সওয়াল জবাবে পাখওয়াজ হেরে যায়, মনে পড়ে? সেই পাখওয়াজের হেরে যাওয়াতে পাখওয়াজ ভেঙে দেওয়া হয়। পাখওয়াজে যে পণ্ডিত বা ওস্তাদ যিনি ছিলেন, এবার রাগে ভেঙে দেওয়ার পরে যখন ওনার রাগ কমে, উনি পাখওয়াজটা তখন নিয়ে কী করবে, জুটতে পারছে না, ছটগুলোকে ঠিক করে বেঁধে তলায় তাপি মেরে দুটো আলাদা করে বাজিয়ে দেখে, সালা তখনও বাজছে। আরে ভোঁসরিকে, ফির उसके बाद क्या हुआ? তারপর বল। তখন উনি বলে ওঠেন হঠাৎ করে, বাহ, তোড়া জোড়া আলাগ কিয়া তব ভি बोला। বোঝা গেল? এই তব ভি बोला থেকে ভি আর বোটা সরিয়ে দিয়ে তবলার জন্ম। এরকমটা ওনাদের মতে, ওই পণ্ডিত বিদ্বান ব্যক্তিদের আলোচনা ভিত্তিক কথা উড়ে এসে আমাদের কাছে যা এসছে, কিন্তু এর কোনো জাস্টিফিকেশনস নেই বা কোনো এভিডেন্সও নেই। সুতরাং এভিডেন্স বা জাস্টিফিকেশনস, এইসবকে এভিডেন্সকে ভুলে গিয়ে যদি জাস্টিফিকেশনস ধরি লজিক্যাল, তাহলে তাবল TABL উর্দুতে ড্রামসকে বলে। সো দ্যাটস ওয়াই আলাউদ্দিন খিলজি থেকে শুরু করে বহু এরকম বড় বড় সম্রাট ছিলেন যাদের যুদ্ধতে নাগাড়ার সাথে তবলা নয় বাট ওরকমই পাখওয়াজকে ভেঙে দু টুকরো টাইপের যে ইনস্ট্রুমেন্টটা তৈরি হয় সেটা বাজিয়ে আর কি যুদ্ধর জানান দেওয়া, এই দেওয়া সে দেওয়া, जिसको हिंदी में तेरे को बोलते हैं ऐलान। হ্যাঁ, তো এরকম ধরনের জিনিসপত্র করা তোরা সব ন্যাচারালি হয়ে থাকতো। ইভেন ইলোরা ফেপসেও দেখতে পাবি গিয়ে, ওখানে এরকম আছে, বাট দ্যাট ইজ নট তবলা। তো সেইখানে একটা জন্মবৃত্তান্ত পাওয়া যায়। তো সেখান থেকে দেখতে গেলে ওই টাবলটাকে যদি দেখি, এই যেহেতু স্কাল্পচারস প্রুফ, টাবলের উর্দু মিনিং হচ্ছে TABLটাকে যে ড্রামস, তো সেইখান থেকে তবলা সে অ্যাকচুয়ালি। তারপরে তো আমির খুসরুর এই ইতিহাসটা আমি যেটা বললাম সেটা আছে। সো দ্যাটস দ্য বেসিক পয়েন্ট, বোঝা গেল? কী রে ভাই, এ গাম্বাটের কী হলো? তোর চোখে জল কেন ভাই? গাম্বাটকে তো কোনোদিনও এরকম চোখে জল অবস্থায় দেখিনি আমরা। কি হয়েছে ভাই, খুলে বল। देख यार, हाँ, आंसू तो मर्द को आना ही चाहिए ना। स्वामी विवेकानंद जी ने तो बोल के गए हैं, इतने बड़ा महान हस्तियाँ, कि जो मर्द रोता नहीं है वो मर्द नहीं है। वैसे बचपन से तो बच्चन साहब का मूवी देख चुके हैं हम लोग, वहाँ पे मर्द को कभी दर्द नहीं होता, ये हम लोगों को सिखाया गया है। सारे सीख ही हम लोग गलत सीखते हैं भाई। हम लोग वो तो साला सबसे बुड़बक हम ही लोग बनते हैं। एडुकेशन सिस्टम कुछ हमें सिखाता है, दुनिया आके कुछ और देख लेते हैं। नाना पाटेकर साहब इतना चीख चीख के बताया कि भगवान ने ऊपर से जब नीचे में ताका तो उसको लगा कि कीड़ा बन चुका है, लगा था कितना सुपर इम्पोज क्रिएचर बनाया इंसान। वो इंसान बनाने का इतना शौकीन थे, उसको इतना खुशी था कि हमने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम कर दिया, अपना रिसर्च सक्सेसफुल रहा। नीचे देखा तो खुद के ऊपर घृणा आ गया उनको। हम मर्द भी कुछ ऐसा ही है, तब भी बोला। वो साला बचपन में हम लोग पैदा होते थे एक पखवाज के ही तरह, पूरे के पूरे रहते थे। फिर हमें तोड़ा भी जाता है गुस्से में, फिर हमें जोड़ने का कोशिश भी किया जाता है, लेकिन जोड़ नहीं पाता है, किसी भी कारण कुछ भी बना देता है, दो अलग अलग हिस्से में, फिर भी हम लोग बचते हैं। तब भी बोलते हैं मर्द लोग, कैसे?
अब सोचो, एक एक बार ऑफिस में जाते हो, कभी सुबह सुबह निकले, रात तक तो ऑफिस से वापस आ रहे हो, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ तो हुआ है, कुछ हुआ है, कुछ जलील हुआ, कुछ भी हुए हो, तुम्हारा इज्जत गया, कुछ भाड़ में गया तुम्हारा ज़िंदगी, लेकिन उससे तुमको फ़र्क है, बाकी लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम कुछ भी कर लो, कुछ मदर चोद के वजह से हम लोग अच्छे मर्द जो लोग अभी भी जिंदा है इस दुनिया में, उन लोगों का कोई वैल्यूएशन ही नहीं है। अरे शहरों में बस में चढ़ने से डर लगता है लोगों को। ये है मर्द, हम लोग, हमारा मर्दांगी, शेर की तरह दहाड़ने वाले मर्द अभी बिल्ली चूहा की तरह बन चुका है। फिर भी हम लोग बोलते हैं, तब भी बोलते हैं मर्द को कभी दर्द नहीं होता है। हम लोग तब भी बोलते हैं मर्द को कभी दर्द नहीं होता है। दर्द ही भरा हुआ है हमारे ज़िंदगी में। कहीं पे तुम गालियाँ खा जाते हो अपने बॉस के पास, फिर घर में जाते हो, घर में कोई बड़ा माहौल सा लगा हुआ है, बहुत सब कोई खुश है, तुम वहाँ पे उदास, एक जैसे 5 नंबर वाला थोबड़ा लेकर वहाँ पे घुस जाएगा तो पूरा माहौल बिगड़ जाएगा। तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, घर को संभालो, तुम एक नौटंकी वाला स्माइल मुंह में चपका के अंदर घुस जाओ। तुम खुश, सब कोई खुश है तुमको देख के, बेटा आ गया, बेटा आ गया, पति आ गया, पति आ गया, आ गया बाप, आ गया बाप, आ गया। इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारे पास, बेटा, बाप, पति। तुमको खुद को नहीं मालूम है तुम कैसे भंवड़े की तरह इधर उधर मंडरा रहे हो, तुमको खुद को नहीं मालूम है। फिर भी हम लोग बोलते हैं मर्द को कभी दर्द नहीं होता। बाप जाते हैं दुकान में अपने लिए जूता खरीदने के लिए, 3-4-5 साल से शायद उसका जूता कभी ठीक ही नहीं किया हुआ होगा। गया तो बेटे के लिए या बेटी के लिए, औलाद के लिए कुछ एक अच्छा जूता दिख गया उसको। 950 का दाम था, 900 में लेना है, 50 का खाना खाना है, लेकिन दुकानदार उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला है, 50 का भी नोट लगा देता है, खाने के लिए कुछ बचता नहीं है, बगैर खाए घर आ जाता है। उसको सुकून है, औलाद के लिए जूता ले लिया, लेके घर में आ जाते हैं, हो गया। ये होता है एक बाप का रिस्पॉन्सिबिलिटी। कितना महान रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को नहीं दिखाया। ऐसे करते करते वो अगर किसी दिन मर भी जाएगा, पड़ोसी वाले, घर वाले, दूर के रिश्तेदार, सब कोई मिल के बोलेगा साला कुछ करता था उल्टा सीधा, इसीलिए अभी चला गया, जाने का टाइम नहीं था। यही होता है मर्द का ज़िंदगी। फिर भी हम लोग बोलते हैं, तब भी बोलते हैं हम लोग को तोड़ फोड़ के, लवड़ा लसन करके ज़िंदगी बर्बाद किया जाता है। हम लोग को कोई नहीं, हमारा कोई नहीं है ऐसे। पुरुष के लिए कोई ऐसा कमिटी नहीं है। महिला सुरक्षा केंद्र, पुरुष सुरक्षा केंद्र कहीं पे दिखा है? मेन सिक्योरिटी कहीं पे दिखा है? हमारे लिए कोई सुरक्षा है कहीं पे दिखा है? कहीं पे हमारा कहीं पे रेप नहीं होता है, ऐसे लगता है इन लोगों को। तू थोड़ा खबर लगा ले मेरे भाई, तू थोड़ा स्टैटिस्टिक्स चेक कर लेना, वो स्टैटिस्टिक्स तू बता देना लोगों को कि बाहर के देश में मर्दों का रेप होता है। हमारे यहाँ पे हम लोग का ये रेप करने वाला मादरजात इन लोगों को तो बीच सड़क में लटका के, काट के, हाथ में भजिया तल के मुंह में डालना है उसका लंड पकड़ के, तब जाके हम लोगों को सुकून मिलेगा। उनकी वजह से हम लोग आज मर रहे हैं। चला कोई औरत हमको भरोसा करता ही नहीं है कि हम में भी इंसान है, हम भी है इंसान की तरह, हम में भी भगवान बसता है, हम भी इज्जत देना जानते हैं। ऐसा है ही नहीं, कहीं पे भी कुछ हो जाता है तो हम ही हैं वो कल्प्रिट। एक बार एक औरत फॉल्स में भी उंगली उठा दिया तो हम मर गए, पूरा दुनिया हमारे ऊपर टूट पड़ेंगे उसको विश्वास करके। जब पता लगेगा कौन सही है कौन गलत है, तब तक तेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया। फिर भी हम बोलते हैं, तब भी बोलते हैं हम, तब भी बोला तबला साला हम बजते हैं। तू मेरे को बोल रहा था ना मेरा हाथ नहीं चलता है, तेरे को मालूम है? साला अभी धाड़ धाड़ तकटे तकटे ये एक होता है, ये एक बोल होता है ना, धाड़ धाड़ तकटे तकटे, मालूम है तेरे को? ये धाड़ धाड़ तकटे तकटे सुना है ना, याद है ना भाई? ये मेरे ज़िंदगी में अभी हम कैसे बसता है, तेरे को सुनाई नहीं देता है, हमको सुनाई देता है। सबके ज़िंदगी में ऐसे ही बसता है, ऐसे ही बसता है, गांड गांड माड़ा के यही होता है हमारा ज़िंदगी मर्दों का। हम लोग का ये सोचने वाला कोई नहीं होता है, ये सोचने वाला हमारे लिए कोई होता ही नहीं है। हम ऐसे ही जीते हैं। कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, जब तुम किसी के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो कोई दिखता नहीं है। हम लोगों को कोई खुजली भी नहीं पड़ी है कि हम दिखाए हम कर रहे हैं। हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं किसी को बगैर बताए। ऐसे भी कहानी हम आपको बता देंगे, सोच ले। एक कहानी हम बताते हैं, देख ये मर्द होता, मर्दों का ज़िंदगी है। एक ब्रिज क्रॉस करते हैं, एक पति और पत्नी। एक पत्नी ब्रिज क्रॉस करते हुए बीच में आ जाती है। एक ब्रिज क्रॉस करते वक्त एक रोप ब्रिज होता है, एक मर्द और उसका औरत। औरत बीच में जाती है तो ब्रिज टलने लगता है। औरत अपने मर्द को औरत ऐसे सोचती है कि मर्द उसके पास आ जाए।
तब तक मर्द उसके पास आके पहुंच नहीं पाते। तब औरत के पास जब मर्द आ नहीं पाते हैं, वो मर्द इज़ नॉट फिट फॉर हर, उसको ऐसा लगता है। जब उस पार उसको मर्द ने उसे चीख के कहा कि तुमको अपने आप कोशिश करना पड़ेगा उस पार जाने के लिए, जब उस पार चली जाती है तो पीछे मुड़ के तो देखते हुए रस्सी कट गया था, पकड़ाए हुए औरत को तब महसूस होता है। लेकिन दुख की बात यह है, ये कहानी है, यहाँ पे औरत घूम के देखती है, यहाँ पे कोई इंसान घूम के एक मर्द का एक्चुअल एफर्ट देख रही है और देख रहा है। कुछ भी हो, जो भी हो, कोई देखने वाला है, कोई सुनने वाला है। हकीकत में पीछे मुड़ के देखने वाला हम लोग के लिए कोई नहीं है, जो हम लोग नियत के साथ जीते हैं। तो शादी में जब एक बच्चा एक अपना माँ बाप को छोड़ के किसी और को अपने फैमिली में मतलब ला रहा है, एक मर्द खास करके, तब उसको क्या करना चाहिए? हम अपने माँ के बाद अपनी बीवी को दर्जा दिया जाए, सही है। हालात में कभी ऐसे हो जाए कि माँ और बीवी दोनों आपस में अगर उनको नहीं बनता है, तो यहाँ पे फटता किसका है? मर्द का। ये मर्द ना तो ठीक से औलाद बन पाया अपने माँ के लिए और ना ही अपने पत्नी के लिए ठीक से पति बन पाया। मतलब ये मर्द भी खलास, खत्म। पैसा कमाओ, मर्द बनो, इज्जत गाड़ में कुछ नहीं है। कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, जिस औलाद के लिए तूने अपने पेट खाली रख के ये किया ना, वही औलाद तेरे को ओल्ड एज होम में कुछ ही साल बाद डाल के आएगा। चांसेस है, नहीं है ऐसे मत बोल, चांसेस है भी। फिर भी हम मर्द लोग करते हैं, यही है हम मर्द। लेकिन हमारे ये सारे चीज़ों को सब भूल जाते हैं। हमारे अंदर इतना कुछ दबा हुआ रहता है। एक मर्द अगर कभी एक पेग दारू भी पी लेता है, कितना घिनौना बात उसको बोला जाता है, इतना घिनौना बात बोला जाता है, लेकिन साला कभी सोचता नहीं कि दारू पिया क्यों है इतने उम्र में आके। घाट আমার ভাই, ঠিক আছে ভাই, ঠিক আছে, আমি বুঝতে পারছি ভাই, আমি ভুল হয়ে গেছে। আমি হয়তো এতটা ডিপলি ভাবিনি ব্যাপারটা নিয়ে। তুই না ভাই, কিন্তু ঠিকই বলেছে। দেখ, গাম্বাটের কথাগুলোর মধ্যে একটা অদ্ভুত চাপা কষ্ট কিন্তু আছে। সত্যি তো, আমরা পুরুষ, আমরা কোনোদিনও আওয়াজ করতে পারি না, আমাদের কোনো অধিকার নেই। সবাইকে ভালো রাখার জন্য আমাদেরকে সব কিছু সহ্য করতে হবে, তারপরেও আমাদেরকে বদনাম হওয়ার সম্ভাবনা আছে। না, আমরা নিজেরাও জানি না আমরা কি পরীক্ষা দিতে বা কী ধরনের অগ্নি পরীক্ষা দিতে পৃথিবীতে এসেছি। আমরা মানছি যে আমরা অনেক দিক থেকে খুব শক্তিশালী, কিন্তু ভাই, হৃৎপিণ্ডটা তো সেই নরমই আমাদেরও তো ইচ্ছে আছে। আমরা যে শুধু রাত্রিবেলায় বাড়ির বাইরে থাকতে পারি বা অনেক কিছু করতে পারি, যেটা হয়তো অনেকে মনে করে যে আমাদের স্বাধীনতা বেশি, এটা ভুল। ও তো ঠিকই বলেছে, কাউকে খুশি রাখার জন্য আমাদেরকে নাটক করেও হাসতে হয়। ও তো আরও অনেক অনেক ভালো ভালো কথা বলেছে। এমনও অনেক সিচুয়েশানস আসে না যে আমাদের মনের ইচ্ছা যখন থাকে তখন বাবা মার শাসন থাকে, যখন মনের ইচ্ছা করার মতো স্বাধীনতা থাকে তখন এত দায়িত্ব চলে আসে যে আমরা তখন আর সেই দায়িত্বকে পিছনে ফেলে মনের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারি না। এটা অন্তত মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেপিলেরা, মিডল ক্লাস ফ্যামিলির ছেলেরা তো কোনোদিনই সক্ষম হয়ে ওঠে না, সম্ভব হয় না। প্রচুর কপাল থাকতে হয়, প্রচুর চেষ্টা থাকতে হয়, এটাও সবাই নিয়ে পৃথিবীতে আসতে পারে না। এটা বলাটা তো অত সহজ নয়। তুই ভাই যা ভাই, তুই পাশের ঘরে যা, তুই যা।
मर्दों को भी तेजाब से नहलाया जाता है हर रोज़ हर दिन किसी न किसी जगह पे, लेकिन दुख की बात यह है ये तेजाब को कोई देख नहीं सकता है। किसी भी जुबान से निकला हुआ गलत शब्द जो मर्द को ठोस पहुंचाता है, उसी शब्द को तेजाब के रूप में हम लोग देखते हैं, और वही तेजाब मर्द के बदन से लेकर दिल सब कुछ पिघला देते हैं। और जब समय के साथ साथ इतने ठोकर खाने के बाद एक मर्द खुद ब खुद बदल जाते हैं किसी के सहारे के बिना, तब समाज उसके अगेंस्ट में खड़ा हो जाता है और बोलते हैं मर्द बदलते हैं।